Okay, sir. So my voice is audible? My voice is audible, sir? Yeah, you're completely audible. Okay. Good afternoon to all. It is my honor to welcome you all for attending an online session on intellectual property rights billing. On behalf of entire fraternity of ICT, it is my proud privilege to extend a warm welcome to our resource person for today's workshop, Engineer Pooja Menon BTech IT, Diploma in Intellectual Property Rights, and Swapnil Srish Kulkarni, Director Magic Prince. I welcome our worthy director, YCET Professor A.K. Srivastava, Engineer Lavnish Talwar, HUD Electrical Department, faculty members, and budding engineers. Department of Computer Science was establishing in Yogananda of Engineering and Technology in the year of 2013. Department runs so many activities so that the students get involved in addition to their academic curriculum. Success is not achieved by working hard, it is achieved by working intensely and passionately. Indeed, this mantra of working together that has brought us where we are today. Education in today's world is not just teaching and living within the four walls of the classroom. It is about creating awareness, and awareness is not only restricted to the syllabus, it is for journal awareness too. I would like to request HOD Electrical Department, Engineer Lavnish Talwar sir, for the welcome address. Over to you, sir. Thank you so much, Anamika. It is audible. So, yes, sir. Okay, fine. So, on the behalf of management, Yogananda College of Engineering and Technology, Director YCT, Dr. Anup Kumar Srivastava, sir, I hope heartily welcome the today's event, a webinar on intellectual property rights. Today webinar is for the students of electrical as well as CSC department. So I welcome all the students, the director sir, and our resource person for the day. This webinar will be a very fruitful to all the students as well as the participants or the teachers who are in the aim to provide the intellectual property rights. So first of all, I welcome the first speaker of the day, Madam Pooja Menon, CEO. She has done her BTech IT and thereafter she has done diploma in intellectual property rights. She has also certification from RGNIPPN. She had an enriched experience of 7.5 years in an industry. Ma'am, I welcome you on the behalf of Yogananda College of Engineering and Technology. Our second speaker for the day is Engineer Swapnil Srish Kulkarni. He is the director in Magic Prints. He has done his BTech in Mechanical Engineering and also certification from Six Sigma Yellow Belt. He had a very good experience of 3.5 years in an industry. I hope this session is quite beneficial to all the students as well as the participants to be present there. I also welcome today Director YCT Dr. Anup Kumar Srivastava sir for sparing his valuable time and joining this webinar. I also welcome all the faculty members of Electrical Engineering Department as well as the CSC department who joined this webinar. I also welcome all the students of Electrical as well as CSC department to join this webinar. Lastly, but not least, I also welcome the technical team who provide this platform to join this webinar. This is all about the welcome address. Now I hand it over the mic to Anamika. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now I would like to request Director YCET, Dr. A.K. Srivastava, sir, to say a few words on this event. Over to Director, sir. Director, sir. Thank you, Anamika. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Uh, Respected Madam Pooja Menon from RGNIPM, respected Engineer Swapnil Satish Kulkarni, Director Magic Prints, HOD Electrical Engineering Department, Engineer Lavnish Talwar, faculty members of Computer Science and Engineering Department, as well as Electrical Department, and the students, my dear students of Computer Science and Engineering Department, as well as Electrical Engineering Department. A very good afternoon to all of you.
First of all, I would like to congratulate Computer Science Engineering Department and Electrical Engineering Department for taking the initiative and having a series of lectures under the IIC cell. We had in the past several webinars, and today once again we are going to have the webinar on intellectual property rights filing. My point to all the students is that this particular webinar is, on the filing of intellectual property rights. But the most important thing is that filing, the question of the filing arises only when you do some innovation. For example, if you go for some kind of the patents and copyrights and things like that. Being the student of 5th semester and 7th semester, I would like to tell that, you have to think out of the box, and you need to have the innovation. You can come out with some kind of the ideas, some kind of the good projects, some kind of the, research work. And so that later on you can go for the intellectual property rights filing. Today's webinar definitely will be very helpful to you, and I'm sure that Engineer Pooja Menon as well as Engineer Swapnil Satish Kulkarni, they will be giving you a lot of the informations about filing, so you will be well aware in advance about filing of the copyrights, intellectual property rights, patents, etc., etc. I hope that this webinar is going to be very useful for all the students, and also I would like to give my best wishes to Engineer Pooja Menon and Mr. Kulkarni to have a nice webinar. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank you, Director Sir, for your valuable words. Now I heartily invite Engineer Pooja Menon to start the session. Over to ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for giving this platform, and for even during this time, your institute is looking forward to educate the students and bring best out of their work. So I'll be just sharing my screen so we can start with the presentation and have a great webinar today. Okay. Hello, everyone. A very warm good afternoon to all of you. I know it's not warm there, but still I wish you have a warm day. Okay. So let's move on to the webinar. So before we start, I'll just like to introduce my company, that is Magic Prints. We have been conducting multiple seminars and webinars in educational institutes, industries to promote IPR activity such that we can educate the students. They are more known towards IPR. So whatever projects they are approaching or they want to do in their life, they can always look forward to protecting it and to get benefit out of all the investment, all the time they are putting into their work. Okay, so let's start with today's session. I'll be taking the session in Hindi and English language in combined. If there is any doubt or query, or if there is any gap in understanding, please let me know in between the session. So I'll take the session in the convenient language. Okay, so let's begin. Basically, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है. One is called the intellectual property, another is called the physical property. अब physical property के बारे में हमें बचपन से सब सिखाते हैं. Like आपका घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, ये सब आपकी physical property कही जाती है. अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, राइट? It's very much important that before you decide to endorse it to somebody, you get it registered with the government. अब एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए मैं आपके घर पे कॉफी पीने आती हूँ और मुझे आपका घर बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैं बोलती हूँ कि एक काम कीजिए, इस घर पे जो भी रह रहा है अपना बैग पैक कीजिए और घर से चलते बनिए. आज से ये घर मेरा. Can I do that? Can I actually ask you to pack your bags and leave the house? No. You have the property papers to prove that the house is yours. वो घर के दस्तावेज आपके पास होंगे जिससे आप मुझे डंडे मार के घर से बाहर निकाल सकते हो.
राइट? तो हम हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स वो चीजें जो आपके माइंड में क्रिएट होती है, जैसे कि आइडियाज, इनोवेशंस, थॉट्स, क्रिएटिविटी, पोएट्री, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कही जाती है। अब हम जितना हमें जितना केयरफुल हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बनाया जाता है, सिंस अ वेरी यंग एज हमें बताया जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, इसे इस तरीके से रजिस्टर करना है, बट हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इमेजिन कीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, आप कोई इनोवेटिव आइडियाज पे वर्क कर रहे हैं एंड या फिर इमेजिन कीजिए आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपको एक इनोवेटिव आइडिया आता है। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर। हम बेसिकली अगर मुझे कोई इनोवेटिव आइडिया आएगा तो सबसे पहले मैं मेरे फ्रेंड को कॉल करूंगी, उसे बताऊंगी कि यू नो व्हाट, दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड व्हाइल आई वाज डूइंग द प्रोजेक्ट। या फिर मैं कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन लाइक मेरे गाइड से, या मेरे कोई सीनियर है, या मेरे कोई कलीग है जो इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट है, मैं उन्हें फोन करके डिस्कस करूंगी। क्योंकि हमारे लिए कितना जरूरी है कि कोई हमें ऐसा कहे कि वाह यार क्या आइडिया है, सुपर्ब, शाबाश। जब तक हमें कोई एनकरेज नहीं करता कि हमारा आइडिया या हमारे हमने जो थिंक किया है वो यूनिक है, तब तक हमें हम पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब यहाँ पे क्या गलती होती है? सपोज आपने जिनके साथ ये आइडिया शेयर किया, सी एवरीवन इज हंग्री फॉर फेम, फॉर मनी एंड एवरीथिंग। इमेजिन कीजिए आपने जिनके साथ शेयर किया, however good of a friend he or she is, उसने डिसाइड किया लेट मी राइट अ पेपर एंड पब्लिश इट इन माय नेम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपके आइडिया को उन्होंने एक पेपर लिखा और सिर्फ खुद के नाम से पब्लिश किया, या उन्होंने नेक्स्ट डे मीडिया को कॉल किया और कहा कि दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच आवर वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे एंड दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी कैन प्रोवाइड, और ये आइडिया मैंने इनोवेट किया है। ऐसे सिचुएशन पे क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रूफ है जिससे आप बता सको नहीं आइडिया मेरा था एंड यू कैन स्टॉप दैट पर्सन? कैन यू डू दैट? करंट सिनेरियो में अभी आपके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट गवर्नमेंट ऐसे इंस्टेंसेस किसी के लाइफ में ना हो, इसीलिए उन्होंने एक प्रोविजन बनाया है, दैट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दैट मींस जिस तरीके से आप अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने 4 स्कीम्स डेवलप की है, दैट इज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। आज के सेशन में हम चारों कैटेगरीज को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, आप एज एन इंडिविजुअल कैसे फाइल कर सकते हैं, उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, और ये आपके पोर्टफोलियो में कैसे बेनिफिट करता है, ये हर एक चीज हम आपको थ्रू आउट द सेशन आपको बताते रहेंगे। सी हम कभी भी अपने लाइफ का 1 घंटा भी किसी भी स्पीकर को डेडिकेट करते हैं, देयर शुड बी अ क्वेश्चन, व्हाट एम आई गोइंग टू टेक आउट ऑफ इट, एंड टुडे यू आर गोइंग टू डेवलप अ फ्यूचर विद आईपीआर। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उससे आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे एनहांस कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब सीख करना चाहते हैं तो उसमें आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, एज अ फैकल्टी वो आपके पोर्टफोलियो में कैसे बेटर हो सकता है, एज एन इंस्टीट्यूट ये आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है। हम हर एक पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट we'll be looking into is copyrights. कॉपीराइट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। कॉपीराइट आपके आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है। अब आर्टिस्टिक वर्क में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, बुक्स, स्कल्पचर्स, मूवीज, कोरियोग्राफी, जो भी चीज आर्ट में इंक्लूड होती है, उन चीजों को कॉपीराइट किया जाता है। नाउ इट इज नॉट जस्ट आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट के थ्रू क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट? एनीथिंग दैट इज रिटन विद एन एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से एक वर्क को प्रेजेंट करते हैं, उससे कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम बुक की बात करते हैं, हाउ इज बुक एन आर्टिस्टिक वर्क? सिर्फ मैं फिक्शनल नॉवेल्स की बात नहीं कर रही, आपके जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड बुक्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉपीराइटेड। अब कई बार ऐसा होता है कि सेम कंटेंट अलग अलग बुक्स में फाइंड की जाती है, बट द एंटायर बुक इज कॉपीराइटेड। हाउ? हर एक ऑथर का एक मेथड ऑफ राइटिंग होता है, एक मेथड ऑफ एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि आपके कॉलेज में मल्टीपल फैकल्टीज हैं, सभी टीचर्स का मेथड ऑफ टीचिंग अलग है, वो किस तरीके से नोट्स को बनाते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं। हर एक चीज जिसे आपने एक मेथड ऑफ राइटिंग से अडेप्ट की है, वो सभी चीजें कॉपीराइट होती है। इसलिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, हर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशंस, पेपर राइटिंग, जो पेपर पब्लिकेशंस के लिए आप ड्राफ्ट करते हैं, आपके बुक्स के नोट्स, बुक्स, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर वेबसाइट्स,
एवरीथिंग दैट हैज अ क्रिएटिव टच, जिसमें कुछ भी एक ऑथर के एक्सप्रेशन है, एक मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग या राइटिंग है या क्रिएटिंग है, वो सभी चीजें कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। जब भी मैं कॉपीराइट की बात करती हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि सी अभी ये जो जनरेशन है, इट्स द जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया, आप एक वर्क करें, उसे पब्लिश करें, सो एवरीवन कैन कम टू नो कि ये वर्क आपका है, देन व्हाई शुड आई फाइल अ कॉपीराइट? ट्रू, ऐसे काफी बार मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी, जब भी हम कोई वर्क कोई भी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि इट मींस द जो डेट टाइम स्टैम्प आपको वेबसाइट पे शो होती है, इट इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन। वो डेट से ये प्रूव नहीं होता कि वर्क आपने क्रिएट किया है, ओनरशिप आपकी है, प्रूव नहीं होता। एंड सेकंड, डेट ऑफ क्रिएशन, ये भी प्रूव नहीं होता। So what is presented on the site in which you're publishing is the date of publication. That means मैंने बिल गेट्स का एक लेक्चर पढ़ा और मैंने उसे कॉपी किया और पेस्ट किया मेरे साइट पे, इसका मतलब ये नहीं हो कि वो लेक्चर मैंने दिया है। Will it be? No. It means I have published that work on my site because I loved what it was written. Similarly, so देर इज अ लूप होल, दैट मीन्स अगर आप जब भी कोई वर्क पब्लिश करते हैं, वो ये प्रूव नहीं करता कि उसकी ओनरशिप आपकी है। बट कॉपीराइट फाइलिंग से आपको एक ऑफिशियल गवर्नमेंट टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वर्क आपका है, आपने इस तारीख को क्रिएट किया है और ये आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन है, डेट ऑफ क्रिएशन है और ये आपकी ओनरशिप है। ये हर एक चीज आपको एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए कॉपीराइट फाइलिंग मैंडेटरी है। अब लेट्स टेक few examples जिससे हम ये और बेटर समझ सकते हैं। See here there are two images on your screen, right? The image which you can see on your left hand side was clicked by a press media photographer. अब जब ओबामा सर कैंपेन कर रहे थे इलेक्शंस के लिए टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तब एक प्रेस मीडिया फोटोग्राफर ने उनका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोटोग्राफ है वो क्लिक किया। Now, after the photograph was clicked, वो अपने मीडिया एजेंसी में जाते हैं और उसी इमेज को ब्यूटिफुली ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन में डिजाइन करते हैं ताकि वो अपने न्यूज लेटर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन प्रेजेंस में पब्लिश कर सके। अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, तो ओबामा सर के ऑफिस में से किसी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ये रिक्वेस्ट रखी कि लुक वी नीड न्यू बैनर्स, हमें नए बैनर्स छपवाने हैं जिससे पब्लिक और ज्यादा इंप्रेस हो, वोट करे और उनका प्रेजेंस ज्यादा फील हो। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि जब ये एजेंसी को रिक्वेस्ट गई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, आलसी लोगों की कमी तो पूरे कोई भी सेक्टर में नहीं है, राइट? So the person who was given the responsibility to print the banners, he decided to just surf through the internet, find a good image, enlarge it to the best extent, और उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, नीचे होप ऐसा टाइटल डाल के उन्होंने बैनर्स छाप दिए ऑल ओवर यूएसए। वेरी इंप्रेसिव। अब जब बैनर्स छप गए, द प्रेस मीडिया एजेंसी जिन्होंने ये वर्क क्रिएट किया था, दे केम टू नो अबाउट इट। ट्रू। अब this agency, one of the members from this agency walked into the council office. वो ओबामा सर के काउंसिल ऑफिस में वॉक इन करते हैं और बोलते हैं कि सर मैं मीडिया से हूँ और आई नीड टू हैव अ डिस्कशन, जो नए बैनर्स आपने छापे हैं, आई नीड टू हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग द सेम। सी, इलेक्शन टाइम पे मीडिया अटेंशन इज अ ह्यूज थिंग, राइट? सो एक काउंसिल ऑफिस में से एक मेंबर वॉक इन करता है, बोलते हैं सर लेट्स टॉक इन माय कैबिन, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आई कैन एड्रेस इट। सो दे स्टार्टेड टॉकिंग, दे वर लाइक सर जो नए बैनर्स आपने छापे हैं ना, विच आर ऑल अक्रॉस यूएसए, द गाय वाज वेरी हैप्पी क्योंकि वो नोटिस में है, मीडिया इज गेटिंग द अटेंशन। सो बोला या टेल मी, बोला कि सर आई वांट यू टू रिमूव इट राइट नाउ, अभी उतारो सारे बैनर्स। जो उनसे बात कर रहा था, द गाय फ्रॉम द मेंबर, ही वाज लाइक आर यू ड्रंक, पी के आए हो क्या? डू यू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर? So the media guy was like, sir, I know it might be a bit confusing for you, but see, the image that you have used in the posters was created by my agency and it is copyrighted, which you have violated. आपने हमसे permission भी नहीं ली और हमें कोई credibility भी नहीं दी और आपने हमारा authentic work को आपका बना के छाप दिया है. So either remove it or we are going to go into the media, and anyways we are the media, so I'm going to go step out and मैं सबको बता दूंगा कि जिसको यूएस का प्रेसिडेंट बनना है वो बेसिक कॉपीराइट के रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहा. व्हाट इफ कल को वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड हमारे नॉर्मल राइट्स भी हमसे छीन ले? जो मेंबर उनसे बात कर रहा था, ही केम टू नो कि सी
दिस इज नॉट अ बिग एजेंडा, बट अगर ऐसा एक पोर्टफोलियो लेकर, अगर ऐसा एक आर्ग्यूमेंट लेकर ये बंदा वॉकआउट करता है, it would be of a bigger issue than suspected, right? So the guy was like, look, हम banners remove नहीं कर सकते because it is kind of our prestige issue, and we know your media, you want to shout and scream whatever is happening, but till the elections are over, we'll ask you to keep your mouth shut and tell me what it will take. These media guys were paid in huge amount, which was never released, and this news was kept shut till the elections were over. And after the elections, these news came out, but nobody cared about it. Okay, क्योंकि एक बार you know copyrighted material की ये वैल्यू है. अगर आपके पास कॉपीराइट है, आप किसी भी पावरफुल पर्सन के सामने जाके खड़े होके आप उनसे अपने राइट्स मांग सकते हैं. सो दिस इज अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन यूएसए. ऐसी चीजें इंडिया में भी होती हैं, बट हमें न्यूज हम ऐसे न्यूज को जाने देते हैं. सो वी डोंट पे टू मच अटेंशन टू दिस. नाउ वी ऑल नो अबाउट द कंपनी TCS. So because I think this is computer branch, so you all know about TCS and Infosys, and many of you might be approaching these companies in future. Now हमें ये जानना जरूरी है कि एज एन एम्प्लॉय जब भी हम ये कंपनी को अप्रोच करते हैं या हम जब भी ये कंपनी ज्वाइन करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है, एंड हाउ अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और अ वायलेशन बाय अस कैन बी अ बिगर एंड सीरियस इशू. लाइक एपिक सिस्टम एक कंपनी है, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है फॉर डिफरेंट हॉस्पिटल चेन्स इन यूएसए. ठीक है, वो अलग अलग एजेंसीज के लिए वर्क करती है, बट दे हैड डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर द हॉस्पिटल चेन्स इन यूएसए. नाउ दे हायर्ड TCS फ्रॉम इंडिया फॉर द मेंटेनेंस वर्क, फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑल सच स्टफ. ठीक है, अब जब उन्होंने हायर किया, जब भी कोई कंपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी को अपने क्लाइंट के वर्क के लिए हायर करती है, दे साइन एन NDA. ओके, इट्स मैंडेटरी, देयर इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो हर कंपनी के टॉप पोजीशन वाले साइन करते हैं, जिसमें बेसिकली लिखा गया होता है कि the data which we are going to share, the client data, the confidential R database, the algorithm needs to be kept confidential. Okay, so if there is any form of violation, आप अगर कोई कॉपी करते हैं, ब्रीच करते हैं या किसी को थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करते हैं, it is a huge violation. And in case we find out that you have done such things, you will be liable to pay whatever compensation we will demand. अब ये अग्रीमेंट कौन साइन करता है? बेसिकली पीपल फ्रॉम द मैनेजमेंट, राइट? यूजुअली मैनेजमेंट लेवल के लोग ये अग्रीमेंट साइन करते हैं. अब वर्क करने कौन आता है? बेसिकली द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. द एम्प्लॉय हु वाज असाइन्ड द वर्क वाज नॉट मेड अवेयर. उसको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई अग्रीमेंट होती भी है. यूजुअली काफी जो कंपनी के जो लोअर लेवल पे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता. Now, when he came to work on the database and the client management and the desk, he was quite impressed about the way the method, the algorithm was working. So he came back to India and he suggested his team कि हमें भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर हमारे इंडियन हॉस्पिटल चेन्स के लिए डेवलप करना चाहिए. Now, they decided to develop a similar software for the hospital chains in US, for hospital chains here in India under the name MedMantra, and launched it. Epic Systems came to know about it कि ऐसा ही सेम एक सॉफ्टवेयर TCS ने लॉन्च किया है इंडिया में by copying their method of working and algorithm and all those things. Epic Systems slapped TCS with an amount of $940 million as compensation for the infringement. See, infringement किसने किया? एक मामूली से एम्प्लॉय ने जिसका 3 लाख 4 लाख सैलरी होगा. Okay, the contract was signed by the people at the managerial level who are at the end the employee of TCS. But जब infringement हुआ, the compensation had to be borne by TCS, the company itself. So this is what you need to be very careful of. अगर आप एक कंपनी के लिए वर्क करते हैं या खुद का स्टार्टअप करते हैं, अगर एक IPR वायलेशन हुआ, a copyright violation, it matters and it will cause a lot of problem till the top level end. ठीक है, सो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है जब भी हम कोई भी ऐसे मैटर के साथ डील करते हैं. ठीक है, whenever there is commercials involved, money involved, it is of a bigger issue. But as a student, as a teacher, अगर आप कोई भी चीज एल्गोरिथम को कॉपी करते हैं, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं, it's okay. But as soon as you decide to commercialize it, it will be of a bigger issue if you do not take care of it. Okay. So हमने कुछ Q&A प्रिपेयर किए हैं ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सके. Will make your work much more easier. Okay. Just a second.
Okay, I just need to know, am I still audible to everyone or is there being any issue with it? Yes, ma'am, you are audible. Great, thank you. ओके सो मूविंग ऑन, हमने कुछ Q&A प्रिपेयर किए हैं ताकि हमें जो यूजुअली क्राउड से आता है, स्टूडेंट से आता है, ताकि यू आर मेड क्वाइट वेल अवेयर ऑफ ऑल द एंटायर टॉपिक. दिस विल कवर मैक्सिमम ऑफ योर क्वेरीज. बट अगर इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी है, टुवर्ड्स द एंड विल बी टेकिंग अ Q&A स्पेसिफिकली one-on-one, so you can get all the queries addressed. So first, what does copyright actually protect? जैसे मैंने कहा, कॉपीराइट जो है वो वर्क का एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट करता है. दैट मीन्स इट डज नॉट प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ वर्क. आपके आइडिया को कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं करता, बट आपने उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया है उसे प्रोटेक्ट करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई लाइक टू क्रिएट अ पेंटिंग, ठीक है, और मैंने सनसेट पेंट किया. सनसेट एक आइडिया है जिसे वो प्रोटेक्ट नहीं करता, बट सनसेट को मैंने किस तरीके से पोर्ट्रे किया है उस पे कॉपीराइट मुझे ग्रांट होगा. ठीक है, so that is what copyright protects. Copyright does not protect the idea, it protects the content, it protects the method, the expression that I have used to portray my work. How long I have to wait to get the work registered? So basically एक copyright filing, it takes around 10 minutes. अगर आपको एक copyright file करना है तो 10 मिनट लगता है. It's an online procedure, it's a mandatory online procedure. ठीक है, कोई भी लोकल ऑफिस में नहीं होता. द ऑफिशियल ऑफिस इज इन दिल्ली. देयर इज ओनली वन कॉपीराइट ऑफिस इन एंटायर इंडिया. सो वो इधर ऑनलाइन ही होता है. एंड टू गेट अ ग्रांट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट इट टेक्स अराउंड 35 to 40 days. गवर्नमेंट साइट आप सर्व करेंगे तो वो लोग 30 days कहते हैं, बट एट टाइम्स इट स्ट्रेचेस टू 35 to 40 days, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही ऑफिस है एंड देयर आर hundreds of application being filed in a day. ठीक है. What is the term of copyright? Now this is interesting. अगर आपने एक copyright file किया है तो कब तक उसकी validity है? So basically till the author, the creator of the work is alive and 60 years after the death of the author. The best example is Michael Jackson. We all know the legend Michael Jackson, right? So till he was alive, he was enjoying the royalty for every work he has done. And after his death, his family still gets the royalty for all the work created by him and is being used in the public. So till 60 years after his death, the family will get royalty for all the work that is being used in the market. So that is the benefit of copyright. So अगर आप कोई भी work copyright कराते हैं, not just you, your upcoming generation can even get royalty for all the work that you have created. Okay, now अब कॉपीराइट का एक और इंपॉर्टेंस मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, बिकॉज दीज आर फॉर द पीपल हु आर पब्लिशिंग पेपर्स एंड हु आर गोइंग टू पब्लिश पेपर्स इन फ्यूचर. सी, व्हेनेवर यू डिसाइड टू अप्रोच अ पब्लिकेशन हाउस, फाइल अ कॉपीराइट एंड देन अप्रोच देम. व्हाई? जब भी आप कोई पब्लिकेशन हाउस को अप्रोच करते हैं, दे यूजुअली सेंड यू अ TNC पेज, मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशंस का शीट आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको आपको साइन करके सेंड बैक करना होता है. क्या आपने कभी भी वो केयरफुली पढ़ा है? एक्चुअली हमारे इंडिया में हम समझते ही नहीं कि कौन किसकी नीड है. Getting paper published is our need, but to publish paper is the publication house's need. What is the error that we do? हमने क्या किया, वो TNC में एक IPR clause होता है which states कि all the documents that you're submitting here is now on the property of the publication house and we own the right to change, modify and to translate in the way we seem feasible. You cannot from now on, the author cannot now on stop the publication house from printing it in the way we find feasible. अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब भी आपने एक वर्क सबमिट किया, पब्लिकेशन हाउस ऐसा बोलती है कि हम कॉपीराइट फाइल करेंगे, बट दे फाइल द कॉपीराइट एज एन ओनर, नॉट एज अ पब्लिशर. अब इसका सबसे बड़ा फ्लॉज, सब एग्जाम्पल किससे समझाती हूँ. आपका एक घर है और आपने डिसाइड किया कि आपको उसे रेंट पर देना है. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग इट आउट फॉर रेंट, you decided to give it away for free and without give it away for free without even just signing the papers. आपको पता भी नहीं है सामने कौन है क्या है, आपने वो घर को बेच दिया उसे फ्री ऑफ कॉस्ट. विल यू एवर डू दैट? नो, यू वोंट एवर डू दैट. बट जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आई, हमको ध्यान ही नहीं था कि हम क्या साइन कर रहे हैं. जब भी आप पब्लिकेशन हाउस को वो डॉक्यूमेंट साइन करके देते हैं, आप उन्हें ओनरशिप शेयर ऑफ करते हैं, नॉट जस्ट द प्रिंटिंग राइट्स but the entire ownership of the work. So do not do that. You file a copyright and give them only publication rights. So उससे क्या होगा, जब वो अप्लाई करते हैं
तो वो दे विल फाइल इट एज अ पब्लिशर एंड नॉट एज एन ओनर, बिकॉज ओनरशिप शुड ऑलवेज बी विथ यू। अब सपोज कीजिए आपने जो पेपर ड्राफ्ट किया है, ठीक है, अब उस पे आपको एक बुक लिखना है, ठीक है, यू वांट टू राइट अ बुक, आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि पब्लिकेशन हाउस से आपको राइट्स वापस लेने पड़ेंगे। So you understand what the problem is. So file a copyright and then publish your papers such that the ownership of the work is always with you. Okay. I hope copyright is clear. अगर आपको कोई भी doubt है, query है, you can put it into the chat box, or towards the end of the session we'll be taking it one by one. ठीक है. Trademark. Trademark हम थोड़ा fast लेंगे क्योंकि this is related to branding. अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हैं, आप उसे कैसे पहचानते हैं? हाउ डू यू नो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस और दिस इज द एग्जैक्ट प्रोडक्ट यू वांट टू बाय? यूजुअली यू रिकॉग्नाइज इट थ्रू इट्स नेम, लोगोस, सिंबल्स, जिंगल्स, टैगलाइंस। ये सभी चीजें एक प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम ड्राइविंग, ठीक है, और आई एम गोइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आई एम सडनली हंग्री एंड आई वांट टू ईट समथिंग, पर मुझे पता है कि अगर रोड स्ट्रीट फूड खाया तो माइट आई गेट फूड पॉइजनिंग। सो मैं ड्राइव करके जा रही हूँ, मुझे रास्ते पे कैपिटल में येलो M दिखाई देता है, मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर रही हूँ इट इज मैकडॉनल्ड्स, राइट? मैकडॉनल्ड्स ने उनका वो सिंबल M ट्रेडमार्क कराया हुआ है ताकि वो पब्लिक रिकग्निशन में आए, कोई और कंपटीटर कंपनी वो यूज ना कर सके और लोगों को ट्रस्ट है। सो इफ आई एम ट्रैवलिंग आई विल ऑलवेज try to visit a food chain ताकि I do not get food poisoning maybe, or I don't eat something bad while I'm traveling long distance. So हर एक कंपनी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रेडमार्क फाइल करती है ताकि कोई कंपटीटर कंपनी वही सेम लोगो या सिंबल के साथ मार्केट में कस्टमर्स को कंफ्यूज ना कर सके। इसी तरीके से सिंबल्स, लोगोस, टैगलाइंस, जिंगल्स, अलग अलग चीजें ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट होती हैं। इसलिए आपने कई बार TM या R का सिंबल एक नाम के ऊपर देखा होगा। अब TM और R का बीच का डिफरेंस क्या है, हम टुवर्ड्स द एंड हम समझेंगे, ठीक है? कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें ट्रेडमार्क होती हैं जैसे कि साउंड, स्मेल, डायलॉग, वॉइस, 3 डायमेंशनल डिजाइन। अब ये क्यों ट्रेडमार्क होता है? सपोज मैं एक परफ्यूम बाय करने जाती हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये नहीं चेक करूंगी कि व्हाट गुड ब्रांड इट इज, मैं डेफिनेटली ये चेक करूंगी कि हाउ गुड द परफ्यूम स्मेल्स ऑन मी। मैं 1000-1500 दे रही हूँ तो आई वांट टू हैव अ गुड परफ्यूम, राइट? सो हर परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब भी एक नया स्मेल मार्केट में लॉन्च करती है तो उसकी स्मेल को वो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई कंपटीटर कंपनी वो सेम स्मेल के साथ मार्केट में लॉन्च ना कर सके। ओके, अब हम बात करते हैं वॉइस, साउंड या 3 डायमेंशनल डिजाइन की। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो जब हम वॉइस या 3 डायमेंशनल की बात करते हैं कि कहीं जब हम छोटे थे तब हम कार्टून्स देखते थे, राइट? सो कार्टून में एक टॉम एंड जेरी, उसमें स्टार्टिंग में एक शेर के गुर्राने की आवाज आती है। दैट साउंड इज स्टिल सो नॉस्टैल्जिक कि अगर वो कोई मूवी में भी प्ले होता है तो हमें सबसे पहले टॉम एंड जेरी याद आता है। दैट साउंड इज एन ऑफिशियल ट्रेडमार्क ऑफ वॉल्ट डिज्नी और उनके सिवा या उनके परमिशन के अलावा कोई वो साउंड को यूज नहीं कर सकता। दे लाइसेंस इट टू मल्टीपल कंपनीज ताकि वो उनकी आइडेंटिटी बनी रहे। सो दैट साउंड इज ट्रेडमार्क। इसी तरीके से कुछ वॉइस हैं जैसे कि इंडिया में अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज ट्रेडमार्क की है। सो हिज वॉइस कैन नॉट बी यूज फॉर एनी कमर्शियल पर्पसेस, मतलब प्रोडक्ट सेलिंग के लिए उनकी आवाज को यूज नहीं किया जाता विदाउट हिज परमिशन। सिमिलरली सनी देओल ने अपनी आवाज ट्रेडमार्क की है। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने खुद का नाम जैसे कि सचिन तेंदुलकर, SRK, नमो, ये वर्ड्स को ट्रेडमार्क किया हुआ है। अब क्या मैं मेरा नाम ट्रेडमार्क करा सकती हूँ? पूजा मेनन, कैन आई ट्रेडमार्क इट? मुझ में और उनमें क्या डिफरेंस है? मुझे पता है आप में से कई लोग ये चाहते हैं कि मैं अनम्यूट करके बोलूं कि आप फेमस नहीं है। ट्रू, मैं एक ब्रांड फिगर नहीं हूं, आई एम स्टिल नॉट अ ब्रांड, राइट? अगर सचिन तेंदुलकर टीवी पे आता है और ये कहता है कि आई हैव स्टार्टेड अ वाटर प्यूरिफायर कंपनी एंड इट्स एक्सीलेंट, यू शुड बाय दिस वाटर प्यूरिफायर, there are so many fan followers जो actually believe करेंगे because his name is built with trust and he's a good person. So लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार सचिन जी का है तो सबको बिल्कुल trustworthy होगा, so we should buy it from them. बट अगर मैं वो सेम वाटर प्यूरिफायर आपके घर ले आया और मैं ऐसे बोलूं कि प्लीज ये वाटर प्यूरिफायर बाय कीजिए, आप शायद दरवाजा मेरे मुंह पे दे मारेंगे बिकॉज आई लुक लाइक अ सेल्स वुमन टू यू, राइट? सो कुछ सेलिब्रिटीज जो ऑलरेडी एक पब्लिक खुद एक ब्रांड है
उनका नाम गवर्नमेंट ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए अलाउ करती है, ताकि वो सेम नाम के साथ कोई मार्केट में आके वो नाम को वायलेट ना करे। सपोज कीजिए मैंने एक टोबैको फैक्ट्री डाली, ठीक है, तंबाकू एक गल्ला डाला और मैंने डाला SRK तंबाकू, दैट मीन्स आई एम एक्चुअली सेलिंग कैंसर अंडर द नेम ऑफ SRK, राइट? सो जो एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं, उनके नाम का टैगलाइन आएगा SRK स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सो दिस माइट बी ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम। सो ऐसी चीजें उनके साथ ना हो, इसीलिए वो अपने नाम को ट्रेडमार्क कराते हैं। बट एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं खुद की कंपनी ओपन करती हूँ, अगर मैं खुद का कोई प्रोडक्ट रिलीज करती हूँ, आई राइट अ बुक, या मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका नाम मैं ट्रेडमार्क कर सकती हूँ, ठीक है? सो एज एन इंडिविजुअल आई कैन नॉट ट्रेडमार्क माई ओन नेम, बट इफ आई स्टार्ट माई ओन कंपनी, design a software, write a book, a website, anything that I create and I want to give it a name, I can file a trademark on it. ठीक है? और TM और R का डिफरेंस, जब भी मैं ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करती हूँ, गवर्नमेंट मुझे TM लगाने की परमिशन देता है, दैट मीन्स टेम्पररी मार्क। वो गवर्नमेंट दूसरों को वार्न करती है, मतलब वार्न करने के लिए परमिट करती है कि आई हैव अप्लाइड फॉर अ ट्रेडमार्क, अप्लाइड, and it is under procedure, so please do not use it. And R मतलब registered, that means it's a government approved mark जो nationally इंडियन लेवल पे प्रोटेक्ट होता है, नेशनली कोई यूज नहीं कर सकता। लेमन लैंग्वेज में समझिए, इट्स लाइक एन एंगेजमेंट एंड मैरिज। व्हेन यू आर एंगेज्ड टू समवन, आप सबको बोल सकते हैं कि ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, बट देयर इज नो 100% श्योरिटी दैट देयर इज नथिंग, नो लीगल प्रूफ कि वो बंदा या बंदी आपकी है। बट वंस यू आर मैरिड, इट इज ऑल लीगल, राइट? आप या फिर वो आपकी ही बंदी है वर्ल्ड वाइड, ठीक है? So that is the difference between TM and R. TM is like an engagement and R is like marriage. So even when you're applied for a trademark, there is a possibility कि government उसे reject करे. But once it is R, nobody in India can touch your brand. ठीक है? So but when you decide to approach or file a new brand, please उसे copy ना करे. Like already existing brand का आप replicate ना create करे, because that is called an violation. ठीक है ना? So I hope trademark is clear. Now we'll move on to the next topic, that is patent. मुझे पता है आप यहाँ पे काफी लोग यही टॉपिक को सुनना चाहते हैं, because many of you are interested, because this is something which has been spoken by the government and all the educational institutes. ठीक है? So जैसे हमने देखा कि कॉपीराइट एक्सप्रेशन को, वर्क के कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है, पेटेंट आइडियाज, इनोवेशंस, मेथड्स, डिजाइन्स, इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है। अब जब भी हम कॉपीराइट फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं पूछता कि हाउ यू आर डूइंग इट, व्हाई हैव यू पेंटेड द सन पिंक। कॉपीराइट इज ऑल अबाउट illogical things. अगर मैंने शायरी लिखी और मैंने शायरी में कुछ भी वर्ड्स लिखे, which is my creativity, I can write it. But when we talk about patent, it's completely logical. कुछ भी hypothetical नहीं हो सकता, because government दो questions पूछेगी, why you are doing it, how you are doing it. अगर how का आंसर आपके पास नहीं है, then you cannot file for a patent. ठीक है? थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पेटेंट को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड द यूटिलिटी पेटेंट, second is called the design patent, and third is called the genomically engineered plant variety. मतलब जो लोग जीन्स पे, DNA, RNA, plant modifications पे वर्क करते हैं, उसे कहते हैं plant patent. बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यूटिलिटी और डिजाइन। अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। अब डिजाइन पेटेंट क्या कहता है, अगर आपने एक प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर चेंज किया है टू ब्रिंग सम एनहांसमेंट, बट उसके वर्किंग में या फीचर्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उसके डिजाइन स्ट्रक्चर में चेंज है, देन यू विल फाइल फॉर अ डिजाइन पेटेंट। बट अगर आपने एक प्रोडक्ट के वर्किंग, फीचर्स, कंपोनेंट्स, इन चीजों में इंप्रूवमेंट लाया है, लाइक यू हैव ब्रॉट इंप्रूवमेंट इनटू एनी ऑफ दिस, तो आप उस पर यूटिलिटी पेटेंट फाइल करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, ये ग्लास है, ठीक है, मग है ना। बेसिकली बहुत सारी कंपनीज है जो मग्स और ग्लासेस मैन्युफैक्चर करती है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने सिर्फ मग का शेप चेंज किया, बेसिकली मग को क्यों यूज किया जाता है? इफ यू वांट टू ड्रिंक अ हॉट और कोल्ड बेवरेज, आप वो मग यूज कर सकते हैं ना। मैंने सिर्फ अगर मग का शेप चेंज किया ना, दिस इज आल्सो अ ग्लास, ठीक है। अब ये ग्लास में ही मैं पानी पी सकती हूँ और ये मग में भी पानी पी सकती हूँ। नथिंग हैज चेंज्ड एक्सेप्ट द शेप। सो व्हेन आई एम जस्ट चेंजिंग द शेप ऑफ अ मग, मैं उस पे डिजाइन पेटेंट फाइल करूंगी ना। अब यूटिलिटी की बात करते हैं।
I'm a very lazy person यार, सुबह उठ के ना, but I love to have good frothed coffee. अब ये जो डेल्कोना कॉफी बनाते हैं ना लोग, लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा फेमस हो गया था इंटरनेट पे, it has to be beaten very hardly for like approx 5 to 10 minutes to get that frothed coffee. And now I'm not going to do that. So what I do is I take a small spoon, attach it with a motor system जो slowly whip करना शुरू कर देगा. So what I have to do, I have to take a glass, put the quantity of coffee and sugar and water that I need, and just switch on the button. It will automatically start stirring. मतलब मैं इतनी आलसी हूँ कि मुझे उसको पकड़ के भी नहीं रखना. So it will automatically start stirring, and once it is froth, I just have to pour in the cold milk or the hot milk that I want, and my coffee is ready. So मैंने इस ग्लास को मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है. I gave it new components, new working, new methodology to make my day simpler. जब भी मैं एक ग्लास को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या कोई न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करती हूँ और उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती हूँ, आई विल गो फॉर अ यूटिलिटी पेटेंट. डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं. अगर if I'm thirsty and if I approach a shop, I'll buy a bottle to drink. अब multiple companies पानी की bottle manufacture करती है, like Bisleri, Kenley, Yes, Himalaya. All these companies manufacture water bottles. ठीक है. अब मैं एक दुकान में जाऊं तो मैं Bisleri और Kenley के बीच में difference मैं find कर सकती हूँ because of the structure of the bottle. राइट. सो जैसे ही वो स्ट्रक्चर देख के अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाई तो मैं डिजाइन पेटेंट फाइल करूंगी. नाउ देयर इज एन एंटायर कंपनी कॉल्ड मिल्टन. हम जब छोटे थे हम तब से वो बॉटल्स यूज कर रहे हैं. नाउ दीज बॉटल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्टन. नाउ दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आप इस बॉटल के अंदर गर्म पानी डालें या ठंडा पानी डालें, वो बॉटल उस पानी का टेम्परेचर 24 आवर्स तक होल्ड करेगा. दैट मीन्स दे गिव प्रॉपर्टी टू द बॉटल. ठीक है. सो नाउ the bottle, yeah, obviously it's for storing water, but this bottle has properties. उन्होंने ऐसा मटेरियल, कंपोनेंट, वर्किंग, मेथोडोलॉजी, मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है जिससे ये बॉटल को फीचर्स आ गए हैं. So when Milton will file for a patent, they will file for a utility patent covering the features and a design patent to secure the structure of the bottle. अगर वो डिजाइन पेटेंट फाइल नहीं करती तो ये स्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनीज बॉटल्स मैन्युफैक्चर करेगी, तो इनकी आइडेंटिटी कॉपी हो जाएगी. So just to protect the identity of the company, they'll file a design patent, but to protect the features, the working components, they'll file for a utility patent. So जब भी आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है. Is any new feature added into my idea or into my component? And second, is the design providing a new feature, a characteristics to my patent? अब before moving ahead, एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, मुझे पेटेंट फाइल करने के लिए प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है. आई डू नॉट नीड अ प्रोडक्ट और अ प्रोटोटाइप टू फाइल फॉर अ पेटेंट. इफ आई एम थिंकिंग ऑफ अ यूटिलिटी पेटेंट, आई नीड अ डिस्क्रिप्शन इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म. मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो कि ये कंपोनेंट है, ये वर्किंग है. थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन इज मोर देन एनफ. सेकंड, अगर मुझे डिजाइन पेटेंट फाइल करना है तो भी मुझे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है. I can design the entire product in a software, presenting all the views कि okay ये product कैसे दिखेगा हर तरीके से, और I can file for a design patent. So अगर आपको कोई भी ऐसा कहता है product होना जरूरी है, गवर्नमेंट घर आती है चेक करने, it is all fake. ऐसा कोई नहीं होता. See, I have been in this business for like 8 years. I've never seen government coming down to my house to check who the product is. Yeah, अगर गवर्नमेंट हियरिंग्स होते तो वो प्रेजेंटेशन मांगती है ताकि आपका प्रोडक्ट वो देख सके प्रेजेंटेशन में, but still designed in the computer. ठीक है. So now we'll be discussing what cannot be patented. See, every country has their own terms and conditions. There are few things that can be patented in India and some things that cannot be patented in India. So usually people come down to ask me कि क्या-क्या चीजें पेटेंट होती हैं. हम पहले ये देख लें कि गवर्नमेंट क्या-क्या चीजें रिस्ट्रिक्ट करती हैं. Apart from this, anything can be patented. Okay. Now हमें ये जानना जरूरी है, there is a difference between discovery and patent, discovery and innovations. ठीक है. Like for example, if I find something that already existed in this universe or on this earth, it is called a discovery. Like for example, कुछ भी solid है, liquid है, gas है या living है, non living है, I just discovered, मैंने सिर्फ उसको ढूंढा. ठीक है. अगर मैंने एक पत्थर ढूंढ के निकाला तो it is just a discovery. It cannot be patented. ओके क्योंकि इट्स अ डिस्कवरी. आप उसे खुद का नाम दे सकते हो, राइट, बट आप उसे पेटेंटेड है ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है. सेकंड इज
इन्वेंशन मतलब समथिंग दैट यू क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैच. आपने you are the mother of the of that thing that you have invented, then that is called an invention. It can be patented. अगर आपने कोई चीज इजाद की है from the scratch, you found something, whether it is characteristics or something, then it can be patented. अब what is the first theory? Any kind of scientific principle that has been discovered cannot be patented. For example, ग्रेविटी. अब न्यूटन ने ग्रेविटी ढूंढा, ये सबको पता है, पर न्यूटन ऐसा नहीं कह सकता यू नो व्हाट, आई फाउंड ग्रेविटी, नाउ नोबडी कैन यूज इट. ठीक है, यू ऑल हैव टू फ्लोट. Okay, so it's a discovery, it's a scientific principle. Yes, he gave it the gravity was given his name, Newton's law of gravity, but he cannot, वो आके ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रेविटी मत यूज करो, मैंने ढूंढा है. It's a discovery, so it cannot be patented. Okay, discovery of anything living or non-living. अगर आपने कोई मछली, कोई प्लांट ढूंढा है, it is या फिर आपने कोई पत्थर ढूंढा है, या कोई प्लैनेट ही क्यों ना ढूंढ लिया हो, it is still a discovery. It already existed. You did not do anything to make that thing, right? जैसे मैंने कहा ना, प्लांट, जीनोमिकली इंजीनियर्ड प्लांट, जो प्लांट्स को लोग डीएनए मॉडिफाई कर करके बनाते हैं, that's an invention, it's not a discovery. People have worked into it, इसीलिए उस पे पेटेंट फाइल किया जा सकता है. But something you went into the Amazon and found a new plant is still a discovery, not an invention. ठीक है. An invention which claims anything obviously contrary to well established natural rules. See, कुछ चीजें बहुत generic है, ठीक है, like law of gravity, law of motion, law of energy. ये सभी चीजें बहुत कांस्टेंट है और लोगों ने इस पे बहुत सालों से रिसर्च किया है और पता है कि ये ऐसे ही वर्क करता है. बट आप आए और एक दिन बोला कि आई हैव अ मशीन इन विच यू डू नॉट हैव टू गिव एनी इनपुट, बट कंटिन्यूअसली आप आउटपुट निकाल सकते हैं. विदाउट एन इनपुट एनर्जी यू कैन हैव लॉट ऑफ आउटपुट एनर्जी. इट्स नॉट पॉसिबल. गवर्नमेंट बोलेगी कि prove it, show us, and then we'll think about patent. Second is concept of time travel, right? ये सभी चीजें abstract theories हैं या normal theory को contradict करती हैं. जब तक ये proven नहीं है, it's all theories, आप patent नहीं file कर सकते. An invention which causes prejudice to human and animal plant life. ऐसा कोई invention है जिससे animals, plants या humans को तकलीफ हो, it can harm them, it is not granted. ठीक है, जैसे कि एटॉमिक टेक्नोलॉजी पे भी, एटॉमिक एनर्जी में भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं करती है. बट ऐसा कोई चीज है जिससे ह्यूमंस को बेनिफिट हो, लाइक फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स. अब पेस्टिसाइड्स क्या करता है, इट्स बेसिकली पॉइजन व्हिच किल्स पेस्ट, बट वो ह्यूमंस को और प्लांट्स को दोनों को बेनिफिट करता है. सो दैट केमिकल फॉर्मुलेशन कैन बी पेटेंटेड. सो ऐसी चीज जो ह्यूमन को बेनिफिट करती है बट पॉइजनस है, यू कैन स्टिल फाइल फॉर अ पेटेंट. बट एनीथिंग दैट कॉजेस हार्म टू ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स, it will be stopped. ठीक है. A mere discovery of a new form of known substances which does not result into anything new. अब इसका क्या मतलब है? कार्बन, ग्राफाइट, लेड. ठीक है, सॉरी, डायमंड, ग्राफाइट एंड कार्बन. बेसिकली कार्बन के आइसोटोप्स हैं ग्राफाइट और डायमंड, ऐसा हमने बचपन से पढ़ा हुआ है. सबका फॉर्म और स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, बट एवरीथिंग इज स्टिल एन इन्वेंशन. जो कोल है, इट्स फाउंड इन अर्थ, ग्राफाइट इन अर्थ, डायमंड इन अर्थ. सो एवरीथिंग इज डिस्कवरी, कैन नॉट बी पेटेंटेड. बट देयर इज अ ह्यूज फील्ड कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी. We have been hearing about it, we are going to hear about it, we are going to keep hearing about it, right? It is called nanotechnology. जो सेक्टर है, that is completely a patentable sector. ठीक है. सो अगर उसमें आपने कुछ भी नया क्रिएट किया है, बिकॉज इट्स एन इन्वेंशन, इट कैन बी पेटेंटेड. बट एनीथिंग दैट हैज बीन फाउंड ऑन द अर्थ कैन नॉट बी पेटेंटेड. आई थिंक somebody had some questions, but ma'am, we'll be taking all the questions towards the end ताकि मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कर सकूं. ओके, थैंक यू. ओके, because you people are from the field of science and engineering, ये next point आपको जानना जरूरी है. The mere arrangement or rearrangement of or duplication of a known device, that means something that already existed. कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्ट करती है, आपने सिर्फ उसका प्लेसमेंट चेंज किया. आपने बोला कि ये दिखने में बेटर नहीं है या फिर इसका वर्किंग बेटर नहीं है, चलो मैं इसका सिर्फ पोजिशन चेंज कर देती हूँ. इट इज वेरी जेनरिक ऑफ अ नॉलेज, और कोई भी आपके फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो सोच सकता है. तो ऐसी चीजों को जहां पे सिर्फ अरेंजमेंट चेंज किया है या कंपोनेंट्स को ए से बी कर दिया है, ऐसी चीजों पे आपको पेटेंट नहीं ग्रांट किया जा सकता. ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स टू फाइंड समथिंग इनोवेटिव एंड देयर शुड बी सम चेंज इन द वर्किंग और द मैकेनिज्म और द आउटपुट दैट हैज बीन रिसीव्ड. ठीक है.
इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, सो मेथड ऑफ एग्रीकल्चर ऐसा कुछ हो तो उस पर आपको पेटेंट राइट्स नहीं मिलते हैं. बट if you're finding instruments or finding a technology to improve agriculture, like for example robotics ला दिया, drone systems ला दिया, sprinklers, ड्रिप इरिगेशन, इन सब में कुछ भी इंप्रूवमेंट किया तो आप पेटेंट करा सकते हैं. बट व्हाट आई एम टेलिंग इज हाथ से सो करना या सीड करना, ऐसी कोई प्रोसेस है जो एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है, ऐसी चीजों को गवर्नमेंट पेटेंट नहीं ग्रांट करती. Any process for medical, surgical, curative. Similarly, मेडिकल फील्ड इज फॉर हेल्पिंग पीपल. तो अगर डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सर्जिकली इवॉल्व करने के लिए ऐसा कोई भी मेथड आपने फाइंड किया है, मेथड की बात कर रही हूँ, ऑपरेट करने के लिए, ऐसी चीजों पे पेटेंट नहीं किया जा सकता. बट कोई मशीन है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इक्विपमेंट है जिससे आप मेडिकल फील्ड को बेटर कर सकते हैं, तो आप उस पर पेटेंट फाइल कर सकते हैं, राइट? So like people have been working vastly. अभी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, people IoT, artificial intelligence, machine learning, इस पे rigorous कोडिंग कर रहे हैं ताकि वो इक्विपमेंट्स को स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड यूजर फ्रेंडली बना सके. सो योर फील्ड हैज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन व्हेन यू कम इनटू पेटेंट सेक्टर. ठीक है. A mathematical or business method or a computer program as per algorithm. See, इंडिया में बिजनेस आइडिया, जहाँ पे आप कोई आइडिया लाते हैं बिजनेस, जैसे ओयो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसा कोई आइडिया लाते हैं प्रोडक्ट सेलिंग, इट्स अ बिजनेस आइडिया, आप इंडिया में पेटेंट नहीं करा सकते. दैट इज व्हाई मल्टीपल कंपनीज एग्जिस्ट विद द सेम आइडिया. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पेटेंट नहीं हो सकती. यू कैन गो फॉर कॉपीराइटिंग बट नॉट पेटेंटिंग. कंप्यूटर प्रोग्राम जहाँ पे एल्गोरिथम्स, कोडिंग्स, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स, ऐसी चीजें, वो चीजें भी इंडिया में पेटेंट नहीं होती. बट बिकॉज यू आर इन द सेक्टर ऑफ कंप्यूटर, यू नीड टू नो कि आप जो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं वो किसी हार्डवेयर के साथ अटैच किया जा सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड लिखा है, वो कोई भी प्रोडक्ट के साथ मर्ज करके एक नीड को फुलफिल कर सकता है. सो एज सुन एज वी अटैच द एल्गोरिथम, द प्रोसेस ऑफ इट्स वर्किंग विद द हार्डवेयर, यू कैन फाइल फॉर अ पेटेंट. बट प्योर एल्गोरिथम आप पेटेंट नहीं करा सकते, आप कॉपीराइट कराएंगे. ठीक है. Any invention which has traditional knowledge, like for Ayurveda, yoga, ऐसा कोई भी literature work आप यूज कर रहे हैं तो आप उस पे पेटेंट फाइल नहीं कर सकते. ओके. वर्ल्ड में 90% पेटेंट इंप्रूवमेंट पे फाइल की जाती है. दिस इज अ नोन फैक्ट. दैट मीन्स एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट आपने उसको देखा, आपको मजा नहीं आई, यू वांटेड टू इंप्रूव इट ऑन समथिंग बेटर, then you can file for a patent. 1% improvement is what government asks you for. तो अगर 1% आप improvement कर पाए तो आप उस पे पेटेंट फाइल कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स, जहाँ पे पहले ग्रामाफोन्स थे, फिर कैसेट प्लेयर्स आए, सीडी प्लेयर्स, वॉकमैन, आईपॉड्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली म्यूजिक सुनने के लिए यूज किया जाता था. बट किसी ना किसी ने सोचा कि अगर मुझे रास्ते पे चलते चलते म्यूजिक सुनना है, I cannot pick the gramophone and walk on the streets, right? So वो ग्रामाफोन को किसी ना किसी ने वॉकमैन में कन्वर्ट किया, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप जस्ट ईयर में प्लग करके रास्ते पे वॉक कर सकते हैं. Do you know the design of your headphones has been created by a 15-year-old kid जो फैक्ट्री में वर्क करता था. So innovations कहीं से भी आ सकते हैं. वो डिजाइन जो काफी सालों पहले डिजाइन की गई थी by a kid is still being used for headphones. So anything can be invented by any age without qualifications. ठीक है. So any small things can be patented, जैसे कि safety pins, hair pins, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी पेटेंट होती हैं. and big things can also be patented, like for example medicines, computers, mobile phones, ये हर बड़ी चीजें भी पेटेंट होती है. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बड़ी कंपनीज कैसे डिजाइन एंड यूटिलिटी पेटेंट फाइल करती है. अब एप्पल ने ऐसा कहा कि फोल्डेबल मोबाइल फोन्स का कंसेप्ट आ रहा था, राइट? तो एप्पल ने ऐसा कहा कि पेटेंट ऑफ फोल्डेबल मोबाइल फोन्स एंड फोल्डेबल डिस्प्ले इज विद डिफरेंट कंपनी, लाइक LG होल्ड्स द पेटेंट फॉर फोल्डेबल मोबाइल डिस्प्ले. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम भी मार्केट में रहे जब फोल्डेबल फोन्स आएंगे, एंड व्हाट कैन वी डू टू मेक थिंग्स बेटर एंड एंटर द मार्केट. तो किसी ने सजेस्ट किया, लेट्स मेक फोल्डेबल मोबाइल कवर्स. अब ये एक नॉर्मल फोन है विच डज नॉट बेंड, राइट? अब इसका अगर मैं प्लास्टिक कवर को, ठीक है, दिस इज अ प्लास्टिक कवर, अगर इसको मैं एक बेंडेबल फोन के साथ अटैच करूं, माय फोन वोंट बेंड बिकॉज द कवर वोंट बेंड.
और अगर नॉर्मल जो रबर कवर्स आते हैं, अगर उसे मैंने यूज किया, अगर मैं जैसे ही फोन को बेंड करूंगी वो कवर बेंड होगा बट वो साइड से ऐसे बल्ज होने लगेगा, राइट? सो इमेजिन आई हैव अ 1 लाख वर्थ फोन विद मी एंड अ वेरी बैड मोबाइल कवर। लोगों के सामने इंप्रेशन खराब होती है, राइट? सो एप्पल ने ऐसा कहा, लेट्स मेक अ मटेरियल which can bend and flex as per the phone's movement and it will stay attached to all the corners। और वो मोबाइल का जो मटेरियल है, जो फॉर्मेशन है, जो मेकिंग है, उन्होंने उस पे यूटिलिटी पेटेंट फाइल किया। और जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर उन्होंने डिजाइन किया मोबाइल फोन्स के लिए, उस स्ट्रक्चर पे उन्होंने डिजाइन पेटेंट फाइल किया। सो दे हैव 2 पेटेंट्स फॉर द सेम कंसेप्ट, फॉर द मेकिंग, द बेंडिंग मोशन एंड द मटेरियल एंड एवरीथिंग they have a utility patent, and for the design structure they have for the design structure they have a design patent। ठीक है, जब डिजाइन पेटेंट की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट पेटेंट दैट इज बीइंग अप्रूव्ड हियर इन इंडिया। अगर आपने एक डिजाइन पेटेंट फाइल किया है, विद इन मंथ्स, लाइक 2 to 3 months आपके पास एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो सकता है। हमने इतना फास्ट भी देखा है जहां पे लोगों के पास विद इन 4 weeks एक सर्टिफिकेट आ गया है। सो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सर्टिफिकेट यू कैन गेट एंड इट इज वेरी सिंपल। आपको फाइलिंग के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं, जस्ट अ गुड डिजाइन इज मोर देन इनफ। दिस इज एन एवोल्यूशन। जब हम डिजाइन पेटेंट की बात करते हैं तो लोग उसका इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, बट एक पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जब एक डिजाइन चेंज हुआ। वी ऑल नो नीडल, राइट? जिससे मैं हमारे घर पे मम्मी या दादी या नानी स्टिचिंग करती हैं। यूजुअली वो एक नीडल होता है जिसका आई टॉप कॉर्नर पे होता है, वहां से आप थ्रेड को सीन कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट स्टिच इट आउट। बट एक रेवोल्यूशन हुआ जब वो नीडल का आई को टॉप से बॉटम में कन्वर्ट किया। एवरी स्टिचिंग मशीन दैट यू सी इन द मार्केट हैज द आई ऑफ द नीडल एट द बॉटम एंड। और हर एक नीडल जब भी एज पर द क्लोथ मॉडिफाई हुआ, लाइक फॉर कॉटन, फॉर वूल, फॉर लेदर, फॉर डेनिम, जब भी मॉडिफाई हुआ, हर एक नीडल के डिजाइन को डिजाइन पेटेंट में अप्लाई किया गया था। सो नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस। जब भी एक शेप को एक रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई किया जाता है, भले ही उसका वर्किंग सेम ही है, बट एक रिक्वायरमेंट थी, उसे नीड को फुलफिल करना था, तो उस कन्वर्जन, वो चेंज को हम डिजाइन पेटेंट में फाइल करेंगे। ठीक है, सो हियर आर फ्यू क्वेश्चन, सॉरी, सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस जो हमने लिखे हैं ताकि हम कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। सो can any invention be patented once published or displayed in exhibition? No। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और क्वेरी है जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है। कोई भी इनोवेशन, ठीक है, अगर आपने एक बार पब्लिक में पब्लिश कर दिया, अगर इफ दैट थिंग इज ऑनलाइन, अगर वो पब्लिश हो जाता है तो उस पे आप पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। सो अगर आपने कोई आइडिया पे पेपर पब्लिश कर दिया तो आप उस पे पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। सो फाइल अ पेटेंट बिफोर यू डिसाइड टू पब्लिश अ पेपर। ठीक है, इन विच लैंग्वेज कैन अ पेटेंट बी फाइल्ड? बेसिकली इंडिया में 2 लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया जाता है, वन इज इन इंग्लिश, अदर इज इन हिंदी। Is there any jurisdiction for patent filing? Yes. इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिसेज हैं, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को एक जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया गया। जैसे अगर आप जम्मू से हैं तो दिल्ली आपका जुरिस्डिक्शन है, अगर आप गुजरात से हैं तो मुंबई आपका जुरिस्डिक्शन है। तो हर एक स्टेट को एक जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड किया गया है ताकि पेटेंट को बेटर मैनेज किया जा सके। तो इसका मतलब आप कहीं पे भी जाके फाइल नहीं कर सकते, यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ जुरिस्डिक्शन। बट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेटेंट फाइलिंग इज ऑल्सो एन ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसीजर, आप लॉग इन करके फाइल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ पेटेंट? अगर आप यूटिलिटी फाइल करते हैं तो टर्म आपका 20 years, अगर आप एक डिजाइन फाइल करते हैं तो आपका टर्म है 15 years। ओके, डज इंडियन गिव पेटेंट गिव्स राइट्स वर्ल्ड वाइड? कोई भी पेटेंट आपको वर्ल्ड वाइड राइट्स ग्रांट नहीं करता। इवन इफ यू ऑप्ट फॉर एन इंटरनेशनल पेटेंट, दैट मींस अगर आप यूएस में फाइल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया फाइल करते हैं, कनाडा फाइल करते हैं, कहीं पे भी फाइल करते हैं, कोई भी कंट्री आपको वर्ल्ड वाइड पेटेंट ग्रांट नहीं करता। ठीक है, वो कंट्री में आपके पेटेंट राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं। दैट मींस अगर आपने इंडियन पेटेंट फाइल किया है, यू कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन योर कंट्री। अगर आपको किसी और कंट्री में स्टॉप करना है तो आपको उस कंट्री में पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, डज द पेटेंट ऑफिस कीप द इन्वेंशन सीक्रेट? सी, पेटेंट फाइल करने का एजेंडा ही ये है कि वंस
इट इज इन अगर एक बार पेटेंट एक्सपायर हो जाए उसके बाद उसे कोई भी रिक्रिएट कर सके फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक. पेटेंट इज ऑलवेज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, बट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग 18 मंथ्स तक गवर्नमेंट उसे सीक्रेसी में रखती है टिल द डेट ऑफ पब्लिकेशन. वंस इट इज पब्लिश इट इज ऑनलाइन फॉर ऑल टू व्यू. ठीक है. ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ये भी जरूरत नहीं है. ठीक है. अब पेटेंट वैल्यूएशन की बात करते हैं. जैसे मैंने कहा कि एक आइडिया को आपका पेटेंट प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके लिए आपको प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है. एक पूरी कंपनी उसी आइडिया पे, उसी पर्सपेक्टिव पे वर्क करती है. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वर्नेटेक्स जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है. वो सिर्फ अपकमिंग टेक्नोलॉजी जैसे एमआई है, आईओटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पे सिर्फ पेटेंट्स फाइल करती है. और वो आइडिया को मल्टीनेशनल कंपनीज है जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, उन्हें सिर्फ सेल करती है. सिर्फ आइडियाज को सेल करती है ताकि वो कंपनीज उसे इम्प्लीमेंट करके यूज कर सके. एंड दे अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर जस्ट बाय सेलिंग द आइडिया. सो आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा. यू डू नॉट हैव टू मैन्युफैक्चर a product or a prototype. You just have to secure an idea such that you can get money out of the people who decides to manufacture it. ठीक है. And this is why you have to file a patent. See, India में year मतलब India ranks 7th when you talk about patent filing. 7th is an impressive number. But China जो 1 पे है वो yearly per year 15 लाख के ऊपर पेटेंट फाइल करती है और इंडिया सिर्फ 50,000 पेटेंट फाइल करती है. चाइना 15 lakhs पर ईयर एक साल में. यूएस जो सेकंड है वो सिर्फ 5 लाख करती है. दोनों के बीच में अराउंड 10 लाख पेटेंट्स का गैप है. सी इंडिया, अमेरिका एंड चाइना डजंट हैव अ ईगो वॉर, दे हैव एन आईपी वॉर जो हिडन है, जो बहुत बड़ा एजेंडा है. इफ चाइना कम्स इनटू द मार्केट फुल फ्लेज, वो काफी चीजों को रोक सकता है. ठीक है. एंड इंडिया बीइंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 130 करोड़, हम स्टिल ईयर में 1 लाख पेटेंट नहीं फाइल कर पाते हैं. 50,000 में भी 60% पेटेंट बाहर की कंपनीज आके इंडिया में फाइल करती है ताकि वो इधर इंडिया के लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सके. सो अगर आपको लगता है कि मार्केट में कंपटीशन है या आप बहुत पॉपुलेशन है, टू मच नो जॉब्स, लोग सब एक जैसे हो गए, एवरीवन हैज एन इंजीनियरिंग डिग्री, यू कैन ऑलवेज आउट परफॉर्म बाय जस्ट फाइलिंग एन आईपीआर. अगर आप एक सॉफ्टवेयर फील्ड में है, फाइल मोर कॉपीराइट्स. लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई करेंगे यू हैव एल्गोरिदम्स, यू हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स which is protected nationally. Copyright को तो international protection भी मिलता है just by filing it in India. ठीक है. If you have a innovative idea, you're working in IoT, you're working in artificial intelligence, file a patent. पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे इंडिया, आइडिया भले ही प्रोटेक्शन आपको नेशनल लेवल पे मिलता है पर पूरे वर्ल्ड में पेटेंट एक ही बार ही हो सकता है. पूरे वर्ल्ड में एक ही बार एक इन्वेंशन हो सकता है. सो यू विल बी द पर्सन हु हैज द idea. You will be the only one person in the entire world who has that idea. So file for a patent. Okay. Now we as an IP team, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? See, when you talk about IPR, कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे, you do not know how to identify a patent in it. ठीक है. सो हमारी टीम आपकी हेल्प कैसे करेगी? हमारी जो टीम है, they'll analyze your entire document, they'll look through कि कौन से पर्सपेक्टिव पे आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं. अगर कोई आइडिया को एनहांस करना है तो हम आपको उस पर्सपेक्टिव में भी हेल्प करके आपको आईपीआर फाइल करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. So you just have to approach our team with your idea. We can help you to enhance it, find the patentable concept and file for an IPR. Okay. Oh, sorry. Okay. So I'm sorry. Okay. So if you have any doubt or query, we can address the same. Okay. Students, if you have any doubt, you can free to ask questions.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your valuable words. I hope that the students had an effective sessions and had acquired the benefits from your session. So thank you very much for your thank you very much, ma'am, for your time. Now I request Engineer Robin Kumar to give a formal vote of thanks. Over to Robin, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon to all. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special day. Today we have hosted a online session on intellectual property rights filing. On the special day, I convey my regards and hearty thanks to Engineer Pooja Menon and Swapnil sir for such a fruitful session. I would also like to thank Director YCT, Dr. Anup Kumar Srivastava, Engineer Dinesh Gupta, President IIC Cell, Engineer Labneesh Talwar, HOD Electrical Engineering Department, all faculty members and students for their support and participation. I hope you all enjoyed the lecture. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. And please mark your, please fill the form